વૈષ્ણવજનો, કાર્તિક પુરુષોત્તમ માસમાં ચિરંજીવ યદુનાથજી મહોદય શ્રીના શ્રીમુખથી આપ સૌને શ્રી યમુનાજીના 41 પદો ઉપરનું વિવેચન, વર્ણન ના શ્રવણનો અલૌકિક લાભ પ્રાપ્ત થવાનો છે. આ સુંદર મનોરથ ભગવત કૃપાથી સંઘવી પરિવાર દ્વારા જેનું આયોજન થયું, જેનો લાભ મુંબઈ, કાંદીવલી, બોરીવલીના સમસ્ત વૈષ્ણવને મળશે. આ કલયુગમાં ભગવત નામ લેવું અને લેવડાવવું એ બંને પુણ્યનું કાર્ય છે. લૌકિક કાર્યક્રમ હોય, લૌકિક કંઈ આયોજન હોય, એમાં ખૂબ ખૂબ નિમંત્રણ અપાય, વારંવારે કહેવામાં આવે, એમનો સત્કાર થાય, છતાં ઘણીવાર લૌકિક લોકોને કંઈ ને કંઈ ત્રુટિ લાગે. એ જ લૌકિક. જ્યારે અલૌકિક કાર્યમાં આપણે ત્યાં જો દરેક પત્રિકામાં વધાઈ લખવામાં આવે છે, વધાઈ વધાઈ. એ શું સૂચન કરે છે? શુભ સંદેશ, અલૌકિકનું આમંત્રણ. કોઈ પણ ભગવત કાર્ય સંબંધી કોઈ પત્રિકા હશે, આ આપણા પુષ્ટિ સંપ્રદાયની એક પ્રણાલિકા છે કે વધાઈ લખવામાં આવે છે કે અમને આ શુભ સંદેશ પ્રાપ્ત થયો. એ પછી પત્રિકાના રૂપમાં હોય, છાપામાં જાહેરાતના રૂપમાં હોય, કોઈના ફોન દ્વારા હોય, પણ એ વધાઈને વૈષ્ણવો એક વાંચે અને 5 જણને સંભળાવે. જો ગોપીજનો નંદાલયમાં વધાઈ સાંભળી સાંભળીને આવી જતા હતા ઉમટી ઉમટીને, એમ અલૌકિક કાર્યમાં, ભગવત સંબંધી કાર્યમાં વિશેષ આમંત્રણની અપેક્ષા ન રાખતા સ્વયં ચાલીને આવવું જોઈએ. એ આપણું કર્તવ્ય છે. કારણ કે અલૌકિક કાર્ય પોતાના પૂરતું લાભકારી નથી હોતું, પણ જેના દ્વારા સમસ્ત વૈષ્ણવ જનતાને લાભ મળે, જે કાર્ય દ્વારા માનવતાનું કલ્યાણ થાય, વૈષ્ણવમાં રહેલો સુષુપ્ત ભાવ ફરીથી જાગૃત થાય, એવા સુંદર અભિગમને લઈને થતું હોય તો પ્રત્યેક વ્યક્તિ જેને આ સમાચાર મળ્યા હોય બીજા 4 જણને કહે કે એના દ્વારા એ નિમિત્ત બને અને એનો લાભ બધાને મળે. આ ભગવત નામ એક એવી સુગંધ છે જેને સાંભળતાની સાથે જ હૃદયમાં રહેલો સુષુપ્ત ભાવ ફરીથી જાગૃત બની જાય અને સુગંધને કોઈ રોકી ના શકે. જ્યાં સાચા ફૂલો ખીલ્યા હોય, ગુલાબ હોય, મોગરા હોય, ચંપા હોય, તમે જુઓ કે એની સુગંધને કોઈ રોકી શકતું નથી. કોઈ રોકવા પ્રયત્ન કરે તો પણ રોકાઈ ના શકે. એ તો ઉડીને આવવાની જ છે. એ સુવાસ આપણને પ્રાપ્ત થવાની જ છે. વરસાદ વરસી રહ્યો છે, એને લઈને ઘણીવાર આવાગમનમાં કોઈને તકલીફ થાય, પણ ભગવત કૃપાથી જેમ જેમ દિવસ જશે અને આપોઆપ ઠાકોરજીની કૃપા થશે અને વધારેમાં વધારે વૈષ્ણવ લાભાન્વિત થાય, હું એવી શુભકામના આજે રાખું છું. આ વરસાદ તો આપણી કસોટી સ્વરૂપ છે કે કેટલી તત્પરતા છે આપણને ભગવત શ્રવણ કરવાની. આજે આપણને ટ્રેનમાં જવું હોય, પ્લેનમાં જવું હોય, ગમે એટલો વરસાદ હોય છતાં નીકળી જઈએ. ત્યાં એમ નથી કહેતા ભાઈ વરસાદ છે એટલે ટ્રેન અમારા માટે ઊભો રાખજો કે ટ્રેન અમારા માટે લેટ કરજો. ત્યાં નથી થતું. ભગવત સંબંધી કાર્યમાં જે પ્રમાદ આળસ આવી જાય છે, વરસાદ છે ને એટલે નીકળાતું નથી, એ આપણી દુર્બળતા છે. આપણા લૌકિક કાર્યો ગમે તે રીતે આપણે કરી લઈએ છીએ. ટેક્સી વાળો ભલે 4 ગણું ભાડું માગે તો પણ આપીને આપણે સ્ટેશને પહોંચી જઈશું, એરપોર્ટ ઉપર પહોંચી જઈશું. પણ ભગવત સંબંધી કાર્ય હોય ત્યારે શિથિલતા આવી જાય છે. પ્રિયજનો, એ શિથિલતાને દૂર કરવાની આવશ્યકતા છે. આ આપણા આત્માનો ખોરાક છે.
પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં દેહ ધર્મ અને આત્મધર્મ બેની ચર્ચા શ્રી આચાર્યજનો કરે છે. દેહ ધર્મની ખબર બધાને છે. શરીરને ભૂખ તરસ લાગે છે, તરત આપણે એનો ઉપાય કરી લઈએ છીએ. શરીરને શરદી ગરમી લાગે છે, તરત એનો ઉપાય આપણે કરી લઈએ છીએ. નાના બાળકને પણ એ સમજાઈ જાય છે. પણ આત્મધર્મ જે છે, જે આપણો જીવાત્મા ભગવદ અંશી છે અને જે શરણાગતિ બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા આપણી થઈ છે, એ આત્માનો ખોરાક શું છે? ભગવદ નામ. શ્રી આચાર્યજનો આપણને સ્પષ્ટપણે કહે છે કે વદતિ ભીરેવ સતતમ સ્થે મિત્તે મે મતિઃ. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમનું સતત જપ, સતત મનન, સતત સ્મરણ, સતત આપણે કરતા જ રહેવું જોઈએ. પદ્ધતિ વિરેવ સતત સ્મરણ અને મનન રહેશે તો આપણા આત્માની અંદર દ્રઢતા આવશે. લૌકિકમાંથી મન આપણું હટીને ભગવત સંબંધી કાર્ય માટે લાલાયિત થાય. આપણામાં રહેલા મિથ્યા અહંકારો ઓગળવા લાગે. અહંતા અને મમતામાંથી આપણું મુક્તિ આપણને મળે તો જીવને પોતાના સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય. આ અહંતા અને મમતા આપણા સ્વરૂપને ભૂલાવી દે છે. અહંતા એટલે શું કે આ મારું છે, આ મારા દ્વારા થઈ રહ્યું છે, મેં કર્યું, હું આ બધું કરું. અને પછી એની ઉપરનું એનું જીવનું મમત્વ, એ મમતા. જ્યારે જીવ સમર્પિત થઈ ગયો, એનું આત્મનિવેદન થઈ ગયું, પછી કોઈ કાર્ય આપણા દ્વારા થતું નથી, પ્રભુની કૃપાથી થાય છે. દરેક કાર્યમાં જીવે એ જ વિચાર કરવાનો છે કે ઠાકોરજી મને નિમિત્ત બનાવી રહ્યા છે, મને યશ અપાવવા માટે નિમિત્ત બનાવીને મારા દ્વારા આવા અનેક કાર્યો કરાવી રહ્યા છે. તો ખરેખર જે જીવ નિમિત્ત બને છે એ તો ભગવત કૃપાનો પૂર્ણ અધિકારી છે કે આવા સુંદર કાર્યો કરાવવા માટે ઠાકોરજી એને નિમિત્ત બનાવ્યો છે. ભગવત સંબંધી કાર્ય આપણા દ્વારા થાય. પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ તો નિષ્કામ ભક્તિનો માર્ગ છે. અહીંયા તો સેવાનું ફળ સેવા જ ગણ્યું છે. ફળની આકાંક્ષા તો એક જ હોય કે કેમ ભગવત કૃપા મારા ઉપર નિરંતર બનેલી રહે. જીવને પોતાની અસમર્થતાનું જ્ઞાન જ્યારે થાય તો એનામાં રહેલો અહંકાર એ નિર્મૂળ બની જાય. અને અહંકાર જ્યારે નિર્મૂળ થાય તો એમાં દીનતા આવે. જે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં પરમ આવશ્યક તત્વ છે, દીનતા. આપણી પાસે દીનતા એક કેવલ સાધન છે. શ્રી હરિયાચરણ એ જ આજ્ઞા કરે છે કે દીનતા એક સાધન છે જીવમાં. માણસ જેટલો નમ્ર અને વિવેકી હશે, લોકોમાં એટલું જ એની પ્રતિષ્ઠા અને કીર્તિ વધશે. જેમ જેમ માણસ મોટો થતો જાય એમ એનામાં અહંકાર વધતો જાય છે. એ આપણે લૌકિકમાં જોઈએ છીએ. તો માણસ જેમ જેમ આગળ જાય એના હૃદયમાં દીનતા આવતી જાય. સફળતા જ્યારે જીવનમાં આવે ત્યારે માનવું કે હવે કસોટીનો કાળ શરૂ થઈ ગયો, કે હવે લોકોની અપેક્ષાઓ મારાથી વધશે. ઘણા બધા લોકો મારી પાસે અપેક્ષાઓ રાખશે. હવે મારે ખૂબ સાવધાનીતાથી ચાલવાનું છે. અને એ કાળ પ્રમેય બળથી પ્રદાન થાય છે. નહીં તો જરાક જીવને અહંકાર આવી જતા, અને એ અહમને પોષણ આપનારા તત્વો પણ હોય છે. તમે બહુ સુંદર કાર્ય કર્યું, તમારા દ્વારા ખૂબ સરસ થયું, એવું કહેનારા પણ મળશે. પણ ભગવત કૃપા હશે તો એમાંથી આપણે બચી શકીશું. તો હંમેશા હૃદયમાં દીનતાનો ભાવ રાખીએ. આપણા અષ્ટસખાઓએ જે 41 પદોની રચના કરી, શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું. શ્રી યમુનાજી કોણ છે? એ સંયોગની શક્તિ છે. જીવને પ્રભુની પાસે લઈ જવાનું કાર્ય શ્રી યમુનાજી કરે છે. જ્યારે જીવનો બ્રહ્મ સંબંધ થાય છે તો સૌથી વધારે પ્રસન્નતા શ્રી યમુનાજીને થાય છે. જોર કર શોર કર જાય પિય સૌ કહે.
ब्रह्म संबंध जब हो त्रिया जीव को उनकी भुजा वहां फरके કેટલી પ્રસન્નતા થાય છે જ્યારે જીવ કોઈ શરણે આવે છે તો શ્રી યમુનાજી અતિ પ્રસન્ન થાય છે કે જો આ નવો જીવ પ્રભુ આપની શરણે આવ્યો છે, આપ કૃપા કરીને એને પોતાના શરણોમાં રાખજો, એનો ત્યાગ નહીં કરતા. એ જીવ છે. જીવાહા સ્વભાવ તો દુષ્ટા દોષ ભાવાય સર્વદા. જીવ તો સ્વભાવથી જ દુષ્ટ છે, અનેક અપરાધી છે, જાણે અજાણે થયેલા અનેક અપરાધો, પણ છતાં પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં સદોષ સ્વીકાર કરાય છે કે તમે જેવા છો. અહીંયા એમ નથી કહ્યું કે દોષ મુક્ત થઈને આવો. દોષ મુક્ત થવા ક્યાં જીવ જાય? તમે જેવા છો શરણસ્થ થઈ જાઓ. ઘરે તમારામાં અનેક દોષો છે, પણ સદોષ સ્વીકાર શ્રી વલ્લભે કર્યો છે અને વલ્લભની આડેથી આપના વંશજો કરી રહ્યા છે. પણ દોષોનું પુનરાગમન ન થાય, પુનરાવૃત્તિ ન થાય, એના માટે સતત આપણે સાવધાન રહેવાનું છે. આપણા આચાર્યો, આપણા વિદ્વાનો સતત આપના માર્ગદર્શન દ્વારા આપણને સંકેત કરે છે, સાવધાન કરે છે. શ્રી આચાર્ય ચરણોએ આટલો પરિશ્રમ લઈને અનેક ગ્રંથોની રચના કરી. એમાં ખાસ કરીને આપણા અષ્ટસખાઓએ 41 પદોના માધ્યમથી તો શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપનું એટલું સુંદર વર્ણન કરેલું છે. અને શ્રી આચાર્ય ચરણોએ આપણે સમજાવ્યું શ્રી યમુનાષ્ટકમ દ્વારા કે જીવની સૌથી મોટી દુર્બલતા હોય તો એનો સ્વભાવ છે. સ્વભાવને લઈને જ અનેક પ્રકારના ભેદ ઉત્પન્ન થતા હોય, પણ એ સ્વભાવ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરનારા શ્રી યમુનાજી છે. સ્વભાવ વિજયો ભવે મદદી વલ્લભ શ્રી. આ સ્વભાવ ઉપર કોઈ વિજય પ્રાપ્ત કરાવી શકનારા છે તો શ્રી યમુનાજી છે. ગમે એવો દુષ્ટ જીવ હોય પણ એના સ્વભાવને જો આ વરસાદ તરત જ આવી, આ શ્રી યમુનાજીની કૃપાનું પ્રથમ આપણને અનુભૂતિ થઈ રહી છે. તો પ્રિય વૈષ્ણવજનો, આ વરસાદ તો આવશે, આપણને ભેગવશે, પણ હવે જે 7 દિવસ સુધી તેમની જગન્નાથ બાબાના મુખેથી જે 41 પદોનો પ્રવાહ વહેવાનો છે એમાં તમારે બધાએ ભીજાવાનું છે. હું તો આજ ખાલી ઉદઘાટન પૂરતો આવ્યો છું સમય કાઢીને. પરમ ભવજી હરીશભાઈનો ખૂબ જ આગ્રહ હતો, ખૂબ એમનો ભાવ હતો, પણ ખરેખર આ યમુનાજીની પૂર્ણ કૃપા થઈ રહી છે. પણ અહીંયાની વરસાદ જેમ આવે છે એમ તરત જતી પણ રહેશે, એટલે જતી પણ રહેશે, પણ શ્રી યમુનાજીનું પદાર્પણ થઈ ગયું છે, એની અનુભૂતિ આપણને થઈ રહી છે. તો હવે હું શ્રી જગન્નાથ બાબાને આજ્ઞા કરીશ કે એમના સુમુખથી આપ સૌ વૈષ્ણવોને લાભાન્વિત કરે. જે પણ આપ લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છો એ બધા જ વૈષ્ણવોને ખૂબ ખૂબ શુભકામના, શુભાશીર્વાદ આપું છું. અને એવી શ્રી યમુનાજીના ચરણોમાં વિનંતી કરું છું કે આ કાર્યક્રમ ખૂબ આનંદથી, સુખેન, ખૂબ જ સુંદર રીતે સંપૂર્ણ થાય એ શુભકામના સાથે મારું વક્તવ્ય અહીંયા થાય એ શુભકામના સાથે મારું વક્તવ્ય અહીંયા સમાપ્ત. નમો ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાયાદ્ભુતકર્મણે રૂપનામ વિભેદેન જગત ક્રીડતિ યો યતઃ પ્રભુર્નંદ કુમારો મે સ્વામિની વૃષભાનુજા कृतार्थोऽहं 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 न संशय। प्रवचन की शुरुआत करने से पहले 2 मिनट के लिए प्रभु के नाम का कीर्तन करेंगे और फिर हमारी सत्संग यात्रा का प्रारंभ करेंगे। सभी भाव से, प्रेम से। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोपाल
ગાતા નથી. મેં ક્યાંક સાંભળ્યું હતું કે એકવાર કોઈની અંતિમ યાત્રા નીકળતી હતી. 4 લોકો ખભા પર લઈને રામ બોલો ભી રામ, રામ બોલો ભી રામ બોલીને જતા હતા. તો ત્યાં કોઈ મુસાફર જતો હતો. એને જોયું કે આ 4 લોકો જે ખભા પર લઈને જાય છે એ બધા પ્રભુનું નામ લે છે, પણ ઉપર જે સૂતો છે એ પ્રભુનું નામ લેતો કેમ નથી? તેને કીધું જે જીવતા હોય ને એ જ પ્રભુનું નામ લે. સમજી જજો. રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે માધવા. 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 ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ 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 ગોપાલ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ 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 ગોપાલ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ 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 ગોપાલ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ 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 ગોપાલ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ 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 ગોપાલ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. ગોપાલ રાધે માધવા. રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ 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 ગોપાલ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે માધવા. ગોવિંદ રાધે
राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल 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 राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा बोलिए श्याम सुंदर सुंदर श्री श्री यमुने यमुने महारानी की जय। परम श्रद्धे परम पूज्य श्री पितृचरण तथा श्रीमद यमुना जी के दिव्य स्वरूप का पान गान और उसमें ही स्नान करने आए मेरे सभी आत्मीजनों, बहुत आनंद का विषय है। संघवी परिवार के मनोरथ स्वरूप एवं श्री यमुना वैष्णव सेवा समाज के उपलक्ष्य में ये दिव्य आयोजन का आज से प्रारंभ होने जा रहा है। पूज्य पितृचरण के आशीर्वाद प्राप्त करके अपन ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और वास्तव में आज मेरी बंबई के बारे में एक धारणा बदल गई। जब देखा ऐसी बारिश है, लगातार 3-4 दिनों से ऐसी बारिश ऐसी बरसात है, सोचा था आज कौन आएगा। लेकिन जहां अब सबको उत्सुकता से अपरस में मानो भीगते भीगते आते हुए देखा और बंबई के बारे में मेरी एक धारणा बदल गई। आज तक मैं मानता था कि बंबई तो शानदार शहर है, लेकिन अब मुझे लगता है बंबई शानदार नहीं, बंबई तो जानदार शहर है। श्री वल्लभाधीश की जय। क्योंकि शान का संबंध शहर की सुंदरता से होता है और जान का संबंध उस शहर में रहने वाले लोगों के हृदय की सुंदरता से होता है। और आज यहां आप सबकी उपस्थिति, ऐसे वातावरण में आप सबकी उपस्थिति दर्शन करा रही है आपके हृदय की सुंदरता का। और वास्तव में ये तो भीगने का महीना है और खूब भीगना है। और देखना, प्रभु भी ये चाहते हैं कि इस महीने में कोई कोरा ना बचे। बाहर जाओ तो बाहर से भीगो और अंदर आओ तो अंदर से भीगो। और भीगने से बचना मत, अपने आप को समर्पित कर देना इसके ऊपर, क्योंकि ये तो यमुना जी का प्रवाह है। और प्रवाह किसको कहते हैं? प्रकर्षति इति प्रवाह, जो बिना प्रयत्न से हमें खींच के ले जाए, बिना प्रयत्न से हमें अपने वश करके ले जाए, वही तो प्रवाह होता है। और ये श्री यमुना जी का प्रवाह है कि जिस प्रवाह को इन 7 दिनों के लिए हमें अपने आप को सौंप देना है। और वास्तव में देखिए कैसा आनंद, जब ये मनोरथी परिवार की भावना जागी, धर्मदास भाई ने विनती करी और हरीश भाई की बहुत विनती थी कि पूज्य पितृचरण का भी पदार्पण हो। जैसी बारिश यहां पे थी वैसी ही अहमदाबाद में भी थी, लेकिन इनकी भावना को वश होके पूज्य पितृचरण ने भी अपनी व्यस्तता में से समय निकाल के यहां पधारना चाहा। और देखिए, श्री यमुना जी जीव को अधिकार प्रदान करने वाली है। यमुना जी का गुणगान तो हम वर्षों से गाते हैं, यमुना जी का गुणगान तो हम बहुत करते हैं, पर यमुना जी का गुणगान हम क्यों करें? यमुना जी के गुणगान से हमें क्या मिलता है? यदि इसका दर्शन अपन इतने शहरों में जाते हैं, इतने देशों में जाते हैं, अधिकतर सभी वैष्णवों के ये एक प्रश्न जरूर होता है, क्या करें जब प्रवचनों में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कथाओं में जाते हैं, सब कुछ याद रहता है, पर जहां घर जाते हैं तो
आगे मुझे नहीं बोलना। जब प्रवचनों में जाते हैं, कथाओं में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सब कुछ याद रहता है, बड़ा अच्छे तरीके से याद रहता है, बड़ा अच्छे ढंग से याद रहता है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि घर पहुंचते पहुंचते गगरिया खाली हो जाती है? यहां भी किसी का प्रश्न है ये? किसको लगता है? उंगली ऊपर करो। इसका कारण क्या? ऐसा क्यों लगता है कि जब सत्संग में बैठते हैं, प्रवचनों में बैठते हैं, कथाओं में बैठते हैं, सब कुछ याद रहता है, सब कुछ समझ में भी आता है, लगता है मानो सब कुछ अंदर जा रहा है, लगता है मानो सब कुछ बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा क्या होता है, जैसे ही खड़े हुए, घर गए, सोफे पे बैठे, टीवी चालू किया और यमुने मैया की जय। ऐसा क्यों होता है? तो कहा जैसे गांव की औरतें होती हैं, नदी में घड़ा लेके जल भरने जाती हैं, और ऐसे ही एक स्त्री अपना घड़ा लेके जल भरने के लिए नदी पे तो गई। जब घड़ा भरा, घड़ा बिल्कुल पानी से छलोछल भर गया, अपने माथे पे रखा, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस घड़े में उसने पानी भरा है, उस घड़े में बहुत सारे झीने झीने छिद्र हैं। उस घड़े को जब पानी से डुबोया, पानी भरा, घड़े में पानी भर गया, लेकिन वो घड़े को अपने माथे पे रख के घर तक आएगी, घड़े में पानी बचेगा? हाँ, क्या लगता है, बचेगा कि नहीं बचेगा? जोर से बोली, पता चले बंबई के विष्णु क्या मानते हैं। नहीं बचेगा। अब क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि उस घड़े में बहुत सारे छिद्र थे। अब आपको कभी लगे और आप कभी किसी को पूछने का मन हो, इतने सत्संग में बैठते हैं, इतने प्रवचनों में बैठते हैं, कथाओं में बैठते हैं, सब कुछ याद रहता है, सब कुछ बड़ा आनंद से सुनते हैं, लेकिन घर जाते जाते खाली क्यों हो जाते हैं? इसका मतलब क्या हो सकता है? हाँ, क्या हो सकता है? जरा जोर से बोलना, सुनाई नहीं दे रहा। उसके अंदर क्या है? देखिए, मैं नहीं बोला, आप स्वीकार कर रहे हैं। यमुना जी के आगे कन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि जब जब भी हम श्रवण करने जाते हैं, सब कुछ याद रहता है, सब कुछ समझ में भी आता है, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते बिल्कुल खाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय रूपी पात्र में आज बहुत सारे छिद्र हैं, बहुत सारे छिद्र उस हमारे हृदय रूपी पात्र के अंदर हैं। इसलिए सत्संग में बैठते हैं, लगता है घड़ा बिल्कुल भर गया, लेकिन जैसे घर तक पहुंचे और ये हृदय खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पात्र में बहुत सारे छिद्र हैं। और तकलीफ तो तब होती है कि जब इसमें दोष हमको अपने पात्र का नहीं दिखता, दोष हम निकालते हैं सत्संग का। इतनी कथाएं सुनी, क्या फर्क पड़ा? इतना सत्संग सुना, क्या फर्क पड़ा? इतने प्रवचनों में जाके बैठे, जीवन में क्या परिवर्तन आया? हम दोष निकालते हैं कथाओं का, लेकिन इसमें दोष सत्संग का नहीं, इसमें दोष कथाओं का नहीं, इसमें दोष हमारे हृदय की पात्रता का है। भरने तो गए, लेकिन ऐसा पात्र लेके गए थे कि भर के भी खाली हो गया। तो इसमें कोई सत्संग क्या कर सकता है? उसमें कोई कथा क्या कर सकती है कि जब दोष हमारे पात्र का ही हो? और देखिए, यदि पात्र के अंदर अशुद्धि भी हो, तो कोई भी वस्तु को शुद्ध करने के दो तत्व होते हैं, या तो जल से धोया जाए, और जो जल से शुद्ध न हो उसको अग्नि पे तपाया जाता है। तो जैसे शुद्धि के दो तत्व होते हैं, ऐसे ही हमारे पुष्टि मार्ग में भी शुद्धि के दो तत्व हैं। एक तो श्री यमुना जी जल तत्व, और दूसरा वैश्वानर विभु, ऐसे हमारे श्री वल्लभ, जो विरह की अग्नि में प्रज्वलित करके जीव को तपाते हैं, जीव को शुद्ध करते हैं। और उन्हीं श्री यमुना जी के गुणगान को हम श्रवण करने जा रहे हैं। और ये गुणगान को आप साधारण मत समझना, यमुना जी का स्मरण कर लो तो भी काफी है, पर आप तो यमुना जी का गुणगान करने जा रहे हैं। किसी भगवती ने बहुत सुंदर कहा है, वो कहते हैं कि यमुना के समारे ते यमुना समारे हैं,
यम, सभी बोलिए, यमुना के समारे ते यम ना समारे है, और यमुना बिसारे ते यम ना बिसारे है। यमुना के समारे ते यम यानी यमराज ना समारे है, और यमुना बिसारे ते यम ना बिसारे है। जो जीव यमुना जी का स्मरण करता है, जिस जीव के मुख में यमुना जी का नाम आता है, और जो जीव यमुना जी का स्मरण करता है, तो यम उसका स्मरण कभी नहीं करता, और जो यमुना जी को भूलता है, यम उसको कभी नहीं भूलता। जो यमुना जी को याद करे उसको यम कभी याद ना करे, और जो यमुना जी को भूले उसको यम कभी ना भूले। इसलिए यमुना के समारे ते यमुना समारे है, और यमुना बिसारे ते यमुना बिसारे है। ऐसे यमुना जी का गुणगान वेदों में भी है, पुराणों में भी है, लेकिन वो स्वरूप अभी तक गुप्त था। यमुनाष्टक की रचना शंकराचार्य जी ने भी करी, पर उस समय तक यमुना जी का मात्र आदि भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप ही जीव पुष्टि सृष्टि के सामने आया था। लेकिन जब संवत 1549 श्री वल्लभ अपने सेवकों के संग गोकुल में पधारे हैं, आपके मन में विचार आया, इसमें से ठकरानी घाट कौन सा और गोविंद घाट कौन सा। और मानो जहां श्री वल्लभ के मन में यह प्रश्न जागा, सुंदर हवा चलने लगी, मंद मंद वायु सारे वातावरण के अंदर फैलने लगा। मानो जहां यह ताप श्री वल्लभ के मुख में हुआ, वल्लभ के मन में हुआ, और मानो श्री यमुनेजु इस ताप को सह नहीं पाई। और जहां श्री वल्लभ ने विचार किया, इसमें प्राचीन गोकुल कौन सा, ठकरानी घाट कौन सा, गोविंद घाट कौन सा, और जहां ये ताप आपके मन में हुआ, मंद मंद वायु व्याप्त होने लगा, सुंदर सुगंधी वायु सारे ब्रह्मांड को घेरने लगा, झिनी झिनी बूंदे गिरने लगी। अचानक यमुना जी के अंदर सारे कमल खिल गए, और यमुना जी के मध्य में से एक 16 वर्षीय कन्या सुंदर श्रृंगार धारण करके हाथ में कमल की माला लेके यमुना जी के जल के ऊपर पैर रखते रखते पधार रही हैं। और जहां जहां वो कन्या पैर रखती है, वहां वहां एक कमल खिलता है, और सुंदर कमलों के ऊपर अपने चरण को पधराती हुई 16 वर्षीय यमुनेजु धीरे धीरे किनारे पे आ रही हैं। और जब आपका स्वरूप का दर्शन किया, श्री वल्लभ भाव विभोर हो गए। यमुना जी ने एक सीख ली और एक लकड़ी से लेके आपने लकीर बनाई और बताया, ये गोविंद घाट, ये ठकरानी घाट। लेकिन यमुना जी का ऐसा स्वरूप था कि जिस स्वरूप को दर्शन करके श्री वल्लभ के आंखों में से प्रेमाश्रु आ गए, और आपके हृदय का जो बहाव यमुना जी को देख के हुआ था, अंदर समा न सका, और आपके मुखारविंद से यमुनाष्टक के रूप में छलक गया। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्प्रज्न मंद रेणुकृताम। ऐसे यमुना जी के स्वरूप का दर्शन जब श्री वल्लभ ने किया, और आपकी वाणी से ये यमुनाष्टक स्फुरित हुआ, और यमुनाष्टक के माध्यम से आपने अपनी सृष्टि को यमुना जी के आधि दैविक स्वरूप का दर्शन करवाया। उसी परंपरा में आगे श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने श्री यमुना अष्टपदी के द्वारा, हरिराय महाप्रभु जी ने विज्ञप्ति के द्वारा श्री यमुना जी के स्वरूप को हमें बताया, यमुना जी का दर्शन कराया। और उस परंपरा में आगे हमारे अष्टछाप भगवदियों ने भी श्री यमुना जी के गुणगान का दर्शन कराया, और वो कुल हमको 108 पद के रूप में प्राप्त है। यमुना जी के मुख्य 108 पद प्राप्त हैं। तो हमको विचार आवे कि यदि यमुना जी के मुख्य 108 पद हैं, तो उसमें से ये 41 पद अलग कैसे हुए, किसने किए, कहां से आए? यमुना जी के मुख्य तो 108 पद हैं, लेकिन उसमें से ये 41 पदों का संकलन किसने किया? तो ये 41 पदों का दान हमको यदि किसी ने दिया हो, तो वही हमारे शिक्षा सागर श्री हरिराय महाप्रभु जी ने। अब देखिए, जिनके रचना शिक्षा पत्र का दर्शन प्रायः वैष्णव नित्य करते होंगे, वार्ता साहित्य पर जिन्होंने भाव प्रकाश लिखा है उसका दर्शन भी हम नित्य करते होंगे। पर इसमें से कितने वैष्णव ऐसे बैठे हों जिनको पता हो कि श्री हरिराय महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य की कौन सी पीढ़ी में?
જેને ખબર આંગળી ઊંચી કરો. શહેરાય महाप्रभु जी, श्री वल्लभाचार्य जी के, हाँ श्री वल्लभाचार्य जी के कौन, क्रम बताओ. श्री वल्लभाचार्य जी के कितने लाल जी? हाँ, उसमें से द्वितीय लाल जी के कौन? बोलो बोलो. विठल लाल जी की कौन? विठल लाल जी, गोसाई जी एक ही. देखिए, जिसके ग्रंथ को अपन देखने वाले हैं, गोविंद राय जी के, कल्याण राय जी, और कल्याण राय जी के शेहराय जी. कितनी पीढ़ी हुई? 5 पीढ़ी. अब देखिए, जब तक किसी की कृति को अपन देखना चाहें तो उस कृति की, उस ग्रंथ की कृपा हम पे तभी उतरती है कि जब उस ग्रंथ के कर्ता का अपन को बराबर परिचय हो. जहां तक ग्रंथ के कर्ता का परिचय नहीं होता, वहां तक उस कृति की कृपा अपने ऊपर नहीं उतरती. और शेहराय महाप्रभु जी ने, क्योंकि आपका स्वरूप भी ऐसा सत्संग का व्यसन, ऐसी व्यसन अवस्था कि एक क्षण भी सत्संग के बिना रह नहीं सकते थे, ऐसे अपने शेहराय महाप्रभु जी. कभी कभी तो भाव विभोर होके वैष्णव बैठे होते और बीच में जाके बैठ जाते, कभी भाव विभोर होके नृत्य करने लगते. सब लोग आके फरियाद करते कि देखो कृपानाथ, ये हिराय जी कैसे हैं, स्वरूप को भूल के वैष्णव के मध्य में नृत्य कर रहे हैं. कल्याण राय जी ने कई बार समझाया, पर जहां सत्संग होता, कीर्तन होता, और अपने आप की सुध भूल जाते. एक बार तो कहते हैं, क्रोधित होकर पिताश्री ने हरिराम महाप्रभु जी को एक कमरे में बंद कर दिया. सत्संग का विरह हुआ, और जहां सत्संग का ताप इतना बढ़ा कि श्री हरिराय महाप्रभु जी से एक एक क्षण भी सत्संग के बिना जीना असंभव लगा. कोई माध्यम न बचा, कोई सहारा न बचा. और उस समय हरिराय महाप्रभु जी ने श्री वल्लभ को याद किया और सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ लेके आपने अखंड 3 दिन तक जब सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ किया, तो श्री वल्लभ ने ऐसी कृपा करी कि श्री वल्लभ और श्री विठ्ठल दोनों ने एक संग आके श्री हरिराय महाप्रभु जी को आशीर्वाद दिया. श्री वल्लभाधीश की. और उस समय हरिराय जी ने पद गाया, जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठ्ठलेश साथ, निज जन पर करत कृपा, धरत हाथ माथ. और मध्यरात्रि के समय जब वैष्णव सत्संग में से अलग हुए, ऐसा सत्संग का नशा छाया हुआ था. न तो घर की सुध थी, न देह की सुध थी. गांव के चौराहे पे खड़े हो गए, और चौराहे पे खड़े होके जोर जोर से कीर्तन करने लगे, गाने लगे, नाचने लगे. आसपास कई लोग रहते थे, विचार करने लगे कि ये कैसे वैष्णव है, और इनके गुरु इनको समझाते भी नहीं है. आधी रात हो गई है, और आधी रात के समय पूरे बीच के बाजार में खड़े होकर नाच रहे हैं. जाके इनके गुरु को फरियाद करता हूं. जो विचार करके वो आसपास वाले लोग श्री हरिराय महाप्रभु जी को फरियाद करने आए कि देखो आपके शिष्य क्या कर रहे हैं. बोले क्या किया उन्होंने? आधी रात हो गई है और चौराहे पे खड़े खड़े नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं. हरिराय जी ने कहा ऐसे कर रहे हैं, चलो मैं उनको समझाता हूं. जो विचार करके हरिराय जी उनको समझाने के लिए, उनको रोकने के लिए तो आए, लेकिन क्या देखते हैं कि भाव विभोर होके सब वैष्णव तो नाच रहे हैं, लेकिन उनके भाव से खिंच के स्वयं निकुंज नायक श्रीनाथ जी उनके मध्य में आके नाच रहे हैं. श्री वल्लभाधीश की. उनके भाव से खिंच के स्वयं वैष्णव के मध्य में निकुंज नायक श्रीनाथ जी को नाचते हुए हरिराय जी ने देखा. हरिराय जी आए थे तो रोकने के लिए, लेकिन ये दर्शन करके वो ऐसे मस्त हो गए कि रोकना भूल गए, और वो भी उनके संग जाके नाचने लगे. और उस समय उन्होंने पद गाया, हो वारीन वल्लभियन पर, मेरे तन को करो बिछोना, शीश धरूं इनके चरणंतर. ये कैसे भगवती हैं, ये कैसे वैष्णव हैं कि जिनके भाव से खिंच के स्वयं निकुंज नायक श्रीनाथ जी यहां पधार गए. हो वारीन वल्लभियन पर, शीश धरूं इनके चरणंतर. कैसे भगवती हैं, कैसे वल्लभी वैष्णव हैं कि जिनके भाव से खिंच के वो श्रीनाथ जी को भी इनके मध्य में प्रकट होना पड़ा. ऐसे श्री हरिराय महाप्रभु जी ने श्री यमुना जी के भी पद की रचना करी, और कहते हैं आप यमुनाष्टक का, यमुना अष्टपदी विज्ञप्ति का नित्य पाठ करते, लेकिन विचार किया मैंने आचार्यों के द्वारा रचित स्तोत्रों का पाठ तो किया है, पर भगवतियों ने भी जो यमुना जी के गुणगान गाए हैं, क्यों ना मैं उनका भी पाठ करूं. यो विचार करके श्री हरिराय महाप्रभु जी ने
अष्ट सखा के सभी सखाओं के 4-4 पद लिए। 4 पद क्यों? क्योंकि एक में किसी भी व्यक्ति का परिचय नाम, रूप, गुण और लीला के द्वारा होता है। तो एक पद में नाम का वर्णन, एक में रूप का, एक में गुण का और एक में लीला का, ये चारों का जिसमें वर्णन हो, इसलिए एक एक सखा के 4-4 पद लिए। तो 8 चौक कितने हुए बताइए, मेरा गणित जरा कच्चा है। कितने हुए? 32 पद संख्या हुई। उसमें 4 पद लिए गंगाबाई क्षत्राणी के, कितने हुए? 36 पद हुए। उसके बाद श्री यमुना जी ने कृपा करके 4 पद श्री हराय महाप्रभु जी के अंदर से प्रकट करवाए, कितने हुए? 40। और ये 40 पदों का पाठ श्री हराय महाप्रभु जी नित्य करते। फिर कहते हैं अन्य किसी आचार्य ने विचार किया कि अपने वहां जो भी आंक में शून्य आता हो वो स्वीकार नहीं है। यूं विचार करके बाद में किसी आचार्य ने उस पद संख्या के अंदर कृष्णदास जी का एक पद शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धनी, जिसका पाठ करने से पूरे यमुनाष्टक का फल प्राप्त होता है, वो पद उसमें जोड़ दिया। कितने संख्या हुई? 41। उसमें 4 पद कृष्णदास जी के जो हैं उसमें कृष्णदासिनी छाप है। और कईयों का मत यह भी है कि वो गोसाई जी के सेवक कृष्णदास ही, कि जिसकी विनती से श्री गोकुलेश प्रभु ने अपना नाम गोकुलेश प्रभु धरा। चर्चा बना के विषयों में करेंगे। और यहां पे जब 41 पदों का दर्शन अपन कर रहे हैं, विचार आता है 41 ही क्यों? अपने वहां शिक्षा पत्र कितने? 41। और 41 पद भी यमुना जी के 41। एक ताली, जब भक्त और भगवान एक हो जाएं, एक ताली हो जाए, ऐसे जुड़ जाएं कि एक दूसरे से अलग न हो सकें, न रह सकें, तब ये 41 होता है। 41 को देखो, 4 और 1, 4 और 1 यानी 41 के जिन पदों का गान करते करते, जिन पदों का श्रवण करते करते श्री वल्लभ, श्री विठ्ठल, श्रीनाथ जी और यमुना जी चारों के लिए एक दृष्टि प्राप्त हो जाए, तो मानो 4 और 1 यानी 41। जिन पदों का गान करते करते हृदय में भावना स्फुरे कि चारों युगों में, युग कितने? 4, और चारों युगों में कोई श्रेय कारक है तो एक श्री यमुना जी, ऐसी भावना प्राप्त हो तो मानो 41 का पान किया। दिवस के प्रहर भी 4, और चारों प्रहर में जब एक दृष्टि से श्री प्रभु का चिंतन हो तो मानो 41 पद दृढ़ हुए। 4 वर्ण हैं और चारों वर्ण के लिए श्रेय कारक कोई है तो एक श्री यमुना जी का नाम। 4, 1, 41। ये संख्या इतनी है कि 7 दिन सिर्फ 41 शब्द के ऊपर हो सकता है। 4, 1, 4, 1, 4, 1। पर हमको आगे दर्शन करना है कि इस पद संख्या के अंदर सबसे पहले जो 4 पद हैं वो श्री हरिराय महाप्रभु जी के हैं। और प्रथम पद के अंदर श्री हरिराय महाप्रभु जी बहुत सुंदर यमुना जी का दर्शन कराते हैं और कहते हैं हमारी यमुना जी कैसी हैं, हमारी यमुना जी कहां हैं, और जहां हैं वहां क्यों हैं, उसका दर्शन हरिराय जी कराते हैं और कहते हैं पिय संग रंग भरी करी कलोले। इसका गान होगा और सभी वैष्णव गान करें। देखिए श्रवण न करें, आज श्रवण तो करना ही है लेकिन संग संग सबको गाना भी है। आइए हम इस प्रथम पद का गान करें और फिर इस पे विवेचन होगा। पिय संग रंग भरे कर कलोल, पिय संग रंग भरे कर कलोल, पिय संग रंग भरे कर कलोल। अब हम
यमुना रे आते विख्यात सब आते विख्यात सब बात इनके हाथ नाम लेते ही कृपा नाम लेते ही कृपा करिय तोले दरस कर परस करूं ध्यान में दरे दरस कर परस कर अब हाँ ध्यान हिय में दरे दरस पर करस कर ध्यान हिय में दरे सदा ब्रजनाथ इन सदा ब्रजनाथ इन संग डोले पिय संग रंग बरे करे कलोले पिय संग रंग बरे करे कलोले पिय संग रंग बरे करे कलोले श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने पति सुख के करण दुख सबन के अरण ये लीनों परन बेज बोले अब ऐसी सी यमुने जानू तुम करो गुणगान ऐसे से यमुने जान तुम करो गुणगान रसिक प्रीतम पाए रसिक प्रीतम पाए नगर अमोले पिय संग रंग बरे करे कलोले पिय संग रंग बरे पिय संग रंग बरे करे कलोले पिय संग रंग बरे करे कलोले
प्रथम पद कि जिसके अंदर श्री हराय महाप्रभु जी हमको श्री यमुना जी का दर्शन कराते हैं। और प्रारंभ कहाँ से करते हैं? श्री यमुना जी कैसी हैं? सबसे पहले तो कहा कि श्री यमुना जी कहाँ रहती हैं, तब कहा पिय संग। वो पिय कौन है? वो पिय वो है जो संसार में किसी एक का पिय नहीं, जो सारे संसार का पिय है। वो पिय ऐसा है कि जो सर्वत्र प्रिय है और सर्वदा प्रिय भी है। ये प्रिय वही है कि जिसको मीरा ने कहा कि ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं कि जो जिए और मर जाए, ऐसी ओढ़ूं चुंदड़ी मेरो चुड़लो अखंड हो जाए। ये प्रिय ऐसा है कि इस प्रिय को जो वरता है उसका सौभाग्य अखंड हो जाता है। ये प्रिय वो है, इस प्रिय को जो वरता है वो प्रिय कभी रूठता नहीं। वो प्रिय वो है कि इस प्रिय को जो अपना प्रिय मानता है उसके वो दोष कभी नहीं देखता। और ऐसे प्रिय के संग श्री यमुना जी हैं। प्रिय संग रंग भरी, प्रिय के संग है। संग किसको बोलते हैं? क्या संग बैठे हैं यानी संग है? संग रहते हैं यानी संग है? कई बार बरसों संग रहने पर भी मन से संग नहीं हो पाते, और कई बार रहते हैं कोसों दूर, और कोसों दूर सोचा और उसी समय उसने भी कुछ सोचा, उसने कुछ विचार किया और वही विचार उसी क्षण उसके मन में भी आया। ये क्या बताता है? ये वास्तविक संग है। यमुना जी प्रिय के संग हैं, और संग मात्र साथ रहने से नहीं होता, कि जिसका कार्य प्रभु को सुख देने के लिए है, जिसका स्वरूप प्रभु को सुख देने के लिए है, जिसकी प्रवृत्ति प्रभु को सुख देने के लिए है, इसलिए प्रिय के संग हैं। और प्रिय के संग हैं इसलिए कैसी हैं? प्रिय संग रंग भरी। यमुना जी कैसी हैं? प्रिय के संग हैं, और प्रिय के संग होने के कारण रंग भरी हैं। रंग भरी यानी रस भरी, रंग भरी यानी कृपा भरी, रंग भरी यानी भाव भरी, रंग भरी यानी भक्ति भरी। ऐसी हमारी श्री यमुना जी है। मानो ऐसी एक कृपा की बदली, क्योंकि हम सीधे सागर में से पान करने जाएंगे तो सीधे सागर में से पान कर नहीं पाएंगे, जल हमको खारा लगेगा। पर वही सागर का जल जब कोई बादल अपने में भर के हम पे वृष्टि करता है, तब वो जल हम पे मीठा लगता है, वो जल हमको तृप्त करता है। तो ऐसे ही कृपा रूपी सागर ऐसे ठाकुर जी के संग रह के उसका रंग अपने संग लाके जो वृष्टि करने वाली बदली कोई है तो वो श्री यमुना जी है। और देखिए, ठाकुर जी भी श्याम, यमुना जी भी श्याम, और हमारे वल्लभ भी श्याम। बोले क्यों? तीनों घन श्याम हैं। मैं कई बार प्रसंग कहता हूं कि एक बार क्या हुआ, जेठ का महीना, और एक किसान अपने खेतों में हल जोत रहा था। ऐसी भयंकर गर्मी लग रहा था मानो अग्नि वर्ष रही हो। ऐसी गर्मी के अंदर वो खेत में वो किसान अपना खेत जोत रहा है। यहां तक उसके हल में बैल भी नहीं थे, बैल की जगह वो खुद खड़ा हो गया था। न पैर में कोई जूते हैं। ऐसी गर्मी के अंदर पूरा शरीर पसीने से लथपथ है, और वो किसान हल को हाथों में लेके खेत जोत रहा था। इतनी भयंकर मेहनत कर रहा था, और कहते हैं उसी समय आकाश में से 2 बादल जा रहे थे। और वो बादल ने जब ये देखा, कैसी भयंकर गर्मी, मानो अग्नि वर्ष रही है। और ऐसी गर्मी के अंदर ये किसान तो देखो, न पैर में कोई जूता है, न तन में कोई कपड़ा है, ऐसे पसीने से लथपथ हो गया है। न इसके हल में कोई बैल ही है, बैल की जगह खुद खड़ा हो गया है और ऐसी मेहनत कर रहा है। लेकिन इसको क्या पता कि इस वर्ष तो हम यहां पे बरसने वाले ही नहीं हैं। इसकी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है, इसका सारा परिश्रम व्यर्थ जाने वाला है। उन बादलों को दया आ गई कि इस किसान की सारी मेहनत व्यर्थ जाने वाली है। और देखो तो सही कितना परिश्रम कर रहा है, देखो तो सही कितनी मेहनत कर रहा है। इसका सारा प्रयत्न व्यर्थ जाएगा और मुझसे देखा नहीं जाता।
चलो भैया हम जाके इस किसान को बता तो दें कि भैया तू इतनी मेहनत तो कर रहा है, लेकिन तेरा सारा श्रम व्यर्थ जाने वाला है, क्योंकि हम इस साल बरसने वाले ही नहीं हैं। और जहां एक बादल ने जाके किसान से बताया कि देख किसान भाई, तू इतनी भयंकर मेहनत कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है, लेकिन तू जानता नहीं कि तेरी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है, क्योंकि इस वर्ष हम यहां बरसने वाले ही नहीं हैं। जहां ये बात सुनी किसान कहने लगा कि बरसना ना न बरसना ये आपका स्वधर्म है, लेकिन मैं किसान हूं और मेरा स्वधर्म इस खेत को जोतना है। भले आप अपना धर्म निभाओ ना निभाओ, लेकिन मैं अपने स्वधर्म को निभाने से नहीं चूकूंगा। भले आप बरसो ना बरसो, पर मैं तो खेत जोत के रहूंगा। और जहां किसान के मुख से ऐसे शब्द सुने, बादलों को लगा, अरे भैया हम जा रहे थे तो कहीं और बरसने को, पर मुझे लगता है कि बरसने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं मिलेगी। आज मन भर के यहीं बरसो। वल्लभाधीश की जय। और जो बादल जा रहे थे कहीं और बरसने को, लेकिन ऐसा अधिकारी कोई जीव देखा, ऐसा कोई पात्र देखा, ऐसा कोई स्वधर्म को निभाने वाला देखा, उन बादलों को लगा कि बरसने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई मिलने वाली नहीं है। और लगता है हमारे ठाकुर जी भी घनश्याम हैं, यमुना जी भी घनश्याम और वल्लभ भी घनश्याम। और जहां ऐसे जीवों को देखा होगा, उनको भी लगा होगा कि बरसने के लिए इससे अच्छी जगह और कहीं मिलेगी नहीं। जी भर के बरस रहे हैं आज, मानो जब से हाथ में पत्रिका आई तब से वृष्टि चालू हो गई। जहां ऐसे अधिकारी जीव दिखे, जहां ऐसा पात्र दिखे, देने वाले को भी लगे आज मैं अपना सर्वस्व दे दूं। जब कोई पात्र दिखे, जब किसी के पास पात्र हो, तो कोई वस्तु की अपेक्षा करनी नहीं पड़ती। जब हमारे अंदर पात्रता आ जाती है तो वो तो बरसने वाले हैं। और जब हम पात्र बन गए तो उनको लगता है आज अपने आप को ही इनको दे दूं, आज सर्वस्व अर्पण कर दूं, जो भी कुछ मेरा है सब मैं इनको दे दूं। और यमुना जी कैसी हैं, पिय संग रंग भरी करी कलोले। यमुना जी प्रतिक्षण प्रभु के संग, प्रभु के रंग में रंगी ऐसी श्री यमुना जी। और देखिए प्रभु के संग हैं, प्रभु भी जिनको छोड़ के एक क्षण अन्यत्र नहीं जाते, ऐसी श्री यमुना जी का स्वरूप। और देखिए जो अपने प्रिय के संग हैं, प्रिय के संग विहार कर रही हैं, और उस समय भी उनका मन कहां है, अपने भक्तों के सुख के लिए। पिय संग रंग भरी करी कलोले। यमुना जी अपने पिय के संग नित्य विहार करती हैं। बोले क्यों विहार करती हैं, तो कहे सबन को सुख देन पियसों करत सैन। यमुना जी प्रभु के संग विहार क्यों करती हैं। जब कोई बादल आकाश में बनता है तो बादल खुद तृप्त होने के लिए नहीं पानी भरता, वो बरसने के लिए, कई प्यासों की प्यास को बुझाने के लिए, कई अतृप्त को तृप्त करने के लिए वो बादल जैसे बरसता है, वैसे श्री यमुना जी भी प्रभु के संग हैं, प्रभु के संग विहार कर रही हैं। पर उनका विहार करना अपने सुख के लिए नहीं, पर सबन को सुख देन। पिया संग करत सैन, सैन यानी संकेत, सैन यानी नेत्र की भाषा, कि जब कोई जीव प्रभु के सन्मुख आता है और यमुना जी अपने नेत्रों से प्रभु को कहती हैं कि हे प्रभु, हे कृपानाथ, आज वर्षों से भटका हुआ जीव प्रभु आपके निकट आया है। अब प्रभु इसे ऐसा पकड़ना कि लाख छूटना चाहे आपसे छूट ना पाए। ये असंग रंग भरी करी कलोले सबन को सुख देन। इसलिए यमुना जी कैसी हैं, बोले परम कृपाल। यमुना जी कैसी हैं, बोले परम कृपालु। परम क्यों कहा यमुना जी को, परम कृपालु क्यों, तीन अक्षर है ना, प र और म। क्यों, क्योंकि जो प्रभु के संग रमण के समय भी जिनका मन अपने भक्तों के सुख का विचार करता है, इसलिए यमुना जी परम कृपालु। प्रभु के संग विहार कर रही हैं, लेकिन इनके मन में अपने सुख की चिंता नहीं, अपने भक्तों के सुख की चिंता है कि मैं ऐसा प्रभु को कैसे मनाऊं कि मेरे प्रभु इन जीवों के ऊपर बरसने को तैयार हो जाएं। मैं प्रभु को ऐसे कैसे मनाऊं कि मेरे प्रभु इन भक्तों के वश हो जाएं। ऐसा जो विचार करती हैं वो हमारी श्री यमुना जी हैं। तो आइए प्रथम पंक्ति का गान हम सब करें। देखिए कोई चुकना मत, ये मौका सब गान करो और गान करके प्रथम पंक्ति का गान करें, ताकि जो जो सुना वो हम बोलें तो सुनी हुई वस्तु हमारे में दृढ़ हो। तो आइए प्रथम पंक्ति का गान हम सब करें।
संग रंग भरे कर कलो ले पिय संग रंग भरे कर कलो ले पिय संग रंग भरे कर कलो ले पिय संग रंग भरे कर कलो ले सबन को सुख देन पिय संग करत सेन चित में तब भरत चैन जब बोले पिय संग रंग भरे कर कलो ले अति ही विख्यात सब बात इनके हाथ, नाम लेत ही कृपा करी अतोले। यमुना जी कैसी हैं? बोले अति ही विख्यात। और अति ही विख्यात यानी जिनका वेदों में भी उल्लेख है, पुराणों में उल्लेख है, शास्त्रों में उल्लेख है। और अति ही विख्यात यमुना जी किसके लिए हैं? क्योंकि सब बात इनके हाथ, क्योंकि सारी कुंजियां इनके पास हैं। मानो ठाकुर जी ने, श्री वल्लभ ने, सभी ने अपने अपने झुमके यमुना जी को दे दिए हैं। वो ताला किसी से न खुले, वो ताला यमुना जी से खुले। अति ही विख्यात सब बात इनके हाथ, और जिसके पास सब कुछ हो, जिसको सब कुछ किसी ने दे दिया हो, सब उनके वश हो, तो क्या सब कुछ अब उसके हाथ में आ जाए? फिर उसके अंदर मद हो जाता है। पर यमुना जी कैसी हैं? अति ही विख्यात सब बात इनके हाथ। पर आपका स्वभाव कैसा? नाम लेत ही कृपा करी अतोले। इतना सब कुछ होने पर भी जिनके नाम का एक बार उच्चार करो और जैसे यमुना जी भागती हुई उसके पास आ जाएं, ऐसा श्री यमुना जी का स्वभाव है। क्योंकि ऐसी कृपालु श्री यमुना जी हैं जो एक बार भी आतुरता से श्री यमुना जी के नाम का उच्चार करे, यमुना जी के नाम को रटे, यमुना जी एक क्षण भी उस जीव से दूर नहीं रह सकती और भागती हुई व्याकुल होकर उसके पास आ जाती है। यमुना जी के नाम का प्रभाव, यदि कोई भी जीव यमुना जी को एक बार भाव से उच्चारे और यमुना जी उसके पास न आवे, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ वर्षों पहले की आपको बात बताऊं, इस प्रसंग का भाव आप अन्यथा मत लेना। इस प्रसंग में आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि हमको लगे कि श्री यमुना जी की, श्री वल्लभ की कृपा, श्री प्रभु की कृपा सिर्फ 500 वर्ष पहले होती थी, उन भगवदियों को होती थी, ऐसा नहीं। आज भी अपने में वो आतुरता है, आज भी अपने में वो भाव है, तो आज भी आपकी कृपा का अनुभव हमें प्रत्येक क्षण होता है। कुछ वर्ष पहले कहीं हमारा प्रवचन का कार्यक्रम था, पास के ही गांव में कोई वैष्णव का रोज हम पे फोन आवे कि आपसे जय मिलना है, कुछ पूछना है, बात करनी है। व्यस्तता के कारण समय न दे पाए। एक दिन तो कहा कि भले जय देर हो गई है, हमको आपसे मिलने आना ही है। करीब 12 बजे पति पत्नी दोनों मेरे पास आए, बैठे हुए थे। पूछा क्यों आना हुआ, क्या काम था? तब उन्होंने कहा कि जय 1 महीने पहले ही हमारे एक का एक पुत्र और उसका कार अकस्मात में मृत्यु हो गया, और तब से ये जो मेरी पत्नी है बिल्कुल विक्षिप्त सी हो गई है, बिल्कुल पागल की तरह हो गई है। सारा दिन रोती रहती है, न घर में कहीं चैन पड़ता है, न बाहर में कहीं चैन पड़ता है, पूरा दिन रोती रहती है। अब इसके मन में कोई भावना नहीं रही, बस यही भावना रही है कि कैसे प्रभु मिले, बस प्रभु को प्राप्त करना है। कहा प्रभु कैसे मिले? मैंने कहा नवरात्रि आ रही है, ऐसे करें आप श्री यमुना जी के पाठ का उच्चार करें। किस प्रकार करूं? मैंने उनको क्रम बताया।
9 दिन तक कैसे यमुना जी के पाठ करें, यमुना जी जरूर कृपा करेंगी। प्रवचन हमारे चल रहे थे, करीब 3 दिन उन प्रवचन पाठ करते करते उनके हुए होंगे। फोन आया कि जीजे क्या करूं, अभी तो पाठ किए 3 दिन हुए, और कल रात को जब मैं सो रही थी मुझे स्वप्न आया कि मेरे ठाकुर जी कहीं से खेलते खेलते पधारे और मेरे बगीचे में कुछ ढूंढ रहे हैं। समझ में नहीं आया मेरे प्रभु क्या ढूंढ रहे हैं, कभी यहां भागे कभी वहां भागे, कभी उस झाड़ के पीछे देखें कभी उस झाड़ के पीछे देखें, समझ में नहीं आया। लेकिन सब सुबह होके मैं वहां पे गई तो देखा ठाकुर जी का नकवेसर वहां पड़ा हुआ है। चारों बार यमुना जी कृपा तो कर रही हैं। करते करते जहां 6ठा दिन हुआ, 7वां दिन हुआ और 8वां दिन हुआ, और एकदम से चौंक के मेरे पे फोन आया कि जीजे क्या करूं, मैं आज पाठ कर रही थी और पाठ करते करते ही एक क्षण के लिए मेरी झपकी लग गई, और जहां झपकी लग गई एक छोटी सी कन्या मेरे पास आई, मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि कल मैं तेरे घर आऊंगी। तब से चैन नहीं पड़ रहा कि जीजे वो क्या था, जो वो यमुना जी थी, तो क्या मुझसे यमुना जी ने कहा कि कल मैं तेरे घर आऊंगी? और यदि यमुना जी ने मुझसे कहा कि कल मैं तेरे घर आऊंगी तो इसका मतलब जीजे क्या लगाऊं? मैंने कहा देखो जो होगा देखा जाएगा। दूसरा दिन था और हमारा कुछ प्रवचन का कार्यक्रम था और उनका फोन आया कि जीजे आप जल्दी के जल्दी पधारो वरना मेरे प्राण चले जाएंगे। मैंने कहा कैसे, अभी हम काम में रुके हुए हैं, प्रोग्राम है, कैसे आ सकते हैं? कि जीजे कुछ भी हो जाए, अभी के अभी आप यहां पधारो वरना पता नहीं मैं पागल हो जाऊंगी या मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैंने कहा अभी हम आ नहीं सकते, व्यस्त हैं, कि ये कुछ भी हो जाए मेरे पति आपको लेने निकल गए हैं और आप अभी के अभी इसी क्षण यहां पधारो। अभी तो फोन रखा और उनके पति गाड़ी लेके आ भी गए थे, वो भी बिल्कुल विक्षिप्त की तरह लग रहे थे, पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा बताओ तो उसे क्या हुआ है? कि जी ये मत पूछो क्या हुआ, जल्दी आप मेरे संग चलो। हम लोग जल्दी जल्दी उनके संग गए। जहां गाड़ी घर पहुंची वो बहन बाहर ही बैठे हुए थे, बाहर बिखरे हुए थे, न देह का ठिकाना न वस्त्र का ठिकाना, बिल्कुल पागलों की तरह लग रहे थे। मैंने कहा क्या है? कि जी कुछ ना बोलो, उससे बोला नहीं जा रहा था, बस रोती जाए, कहे जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो। मैंने कहा हमको जल्दी ले लेके उनके सेवा के रूम के बाहर गए, बाहर खड़े हो गए, कहने लगे जी आप सेवा का रूम खोलो। मैंने कहा क्या है जी बताओ तो सही। कि नहीं मैं बताऊंगी नहीं, आप खाली ये रूम खोलो। और जहां हमने झटके से रूम खोला सेवा का तो देखा पूरे रूम के अंदर घुटनों तक के श्याम जल भरे हुए हैं, पूरे रूम के अंदर, और ऐसी दिव्य सुगंध उस जल के अंदर से आवे। और जब कमरा खोला वो जल बाहर नहीं आ रहा। हमारे संग जो वैष्णव आए थे वो भी बिल्कुल विक्षिप्त की तरह हो गए, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। थोड़ी देर हुई, हम भी थोड़ा स्वस्थ हुए, उसको कहा कि जल्दी जाओ कुछ मिश्री की कुछ भी दूध घर वो लेके आओ। और जहां कुछ लेके आए, भोग धरा यमुना जी को, आरती करी और सबने हाथ जोड़ के विनती करी कि हे यमुना जी आप तो कृपालु हो, आप तो परम कृपाल हो, लेकिन आपसे यही विनती करते हैं कि हम जैसे कलियुग के जीवों के लिए आप प्रभु इतना परिश्रम न लो। बस सबने विनती करी और 2 मिनट के अंदर वो जल कहां चला गया किसी को पता नहीं चला। वल्लभाधीश की जय। कहने का तात्पर्य इतना ही, अन्यथा भाव इसका न लें। कहने का तात्पर्य इतना ही कि अपन को लगे कि कृपा मात्र पहले नहीं होती थी। यदि आज भी अपने मन में तत्परता है, यदि आज भी अपने मन में यमुना जी को मिलने की आतुरता है, तो जैसे कोई नन्हा सा बालक अपनी मां को पुकारे और 100 काम छोड़ के मां भागती हुई उनके पास आ जाती है, ऐसे अपने अंदर भी ऐसी आतुरता हो और ऐसी आतुरता से अपन एक बार भी यमुना जी का नाम का उच्चार करें और यमुना जी भागती हुई ही अपने पास आ जाएंगी। ऐसी कृपालु यमुना जी है। ये श्याम स्वरूप है, सब प्रकट देव हैं, श्री वल्लभ प्रकट हैं, श्री जी प्रकट हैं, श्री गिरिराज जी प्रकट हैं और यमुना जी भी प्रकट स्वरूप हैं। बस अपने अंदर वो दृष्टि प्राप्त हो, अपने हृदय में वो आतुरता आवे कि जिससे हम आपके स्वरूप को देख सकें, उसके दर्शन कर सकें। यदि ये दृष्टि अपन को मिल जाए तो आप तो हमारे सामने प्रकट रूप से विराज जाएंगे। और जब ये भाव अपने मन में आवे तब देखिए यमुना जी कैसी कृपा करती हैं। इसलिए तो कहा अति ही विख्यात, सब बात इनके हाथ। अति ही विख्यात हैं क्योंकि सब बात इनके हाथ है। और आपका स्वरूप भी कैसा कैसा कृपालु स्वरूप कि नाम लेत ही कृपा करी अतोले।
सिर्फ यमुना जी के नाम का उच्चार हो, और यमुना जी के नाम का उच्चार करने मात्र से जो अपने भक्तों के ऊपर बरस पड़े, ऐसी कोई हो तो हमारी श्री यमुना जी है। नाम ले तही कृपा करी अतोले, दरस कर परस कर ध्यान ही हमें धरे। यमुना जी का स्मरण कैसे करोगे? यदि दूर हो तो दर्शन करके, पास हो तो आपके जल का स्पर्श करके, और यदि यमुना जी से काफी दूर हो तो हृदय में यमुना जी का ध्यान धर के भी जो यमुना जी का स्मरण करोगे तो उसी क्षण यमुना जी को वहां पे पाओगे। दरस कर परस कर ध्यान ही हमें धरे, सदा ब्रजनाथ इन संग डोले। और यमुना जी का स्मरण करोगे और उसी समय यमुना जी तो आएंगी, पर उनसे पहले प्रगट प्रभु हो जाएंगे, क्योंकि यमुना जी के संग संग डोलते हैं। जैसे कोई पतंग की डोर पकड़ के जहां डोर को खींचे और पतंग मुड़ती हुई चली जाए, वैसे ही जिसके मुख में यमुना जी का नाम आए और ठाकुर जी उसके वश होके उसके पीछे पीछे भागने लगे। अति दरस कर परस कर ध्यान ही हमें धरे, सदा ब्रजनाथ इन संग डोले। और कैसी यमुना जी हैं कि सदा वो ब्रज के नाथ, वो गोपियों के नाथ प्रभु जिनके वश होके जिनके संग संग डोलते हैं।